Good morning, dear students. Welcome to the maths class once again. Your PTs are over now. I hope you all did well in your exams. So, students, now we'll continue with our math syllabus. So, before proceeding, let us have a quick recap what we have studied in our last class. In our last class, we have started chapter 7 triangles. In triangles, we studied the introduction part of this chapter, in which we studied what are triangles, what is congruency, and what are the criterias of congruency. Okay, so we have studied 5 criterias of congruency on the basis of which we'll say that two triangles are congruent. Okay, so after studying the criterias, we have started exercise 7.1 and completed up to question number 5. Okay, and from today we are going to start with question number 6. Okay, so let's start. This is question number 6. So first we'll read the question. The question is, in figure 7.21, AC is equal to AE. Here AC is equal to AE, AB is equal to AD, and angle BAD is equal to angle EAC. And we have to show that this BC is equal to this DE. Okay, these two lines are equal, that we have to show. Okay, so we'll start. Firstly, we'll mark which sides are congruent, which sides are equal. Here it is given, students, AC is equal to AE. Okay, so this AC and this AE are equal. Okay, now the other thing is AB equal to AD. This AB is equal to this AD. This is also given. And the third thing is angle BAD equal to EAC. Angle BAD, this angle, is equal to angle EAC. EAC is here. These three things are already given. So what you will do, after drawing the figure, you will write given, and whatever is given in the question, you will write it as it is. Okay. And after writing given, you have to put the heading given and write whatever given in the question. Now, to prove, what we have to prove, BC is equal to DE. This we have to prove. Now let's start the solution. अब हम इसका solution start करेंगे. अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें जो भी गिवन कंडीशन है, गिवन क्या क्या है, दो साइड इक्वल गिवन है, ये दो साइड इक्वल गिवन है और ये दो एंगल गिवन है. तो जहां से हमें गिवन है हम वहीं से इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे. तो एंगल से स्टार्ट करते हैं. सो इट इज गिवन दैट एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC. This is given in the question. BAD equal to EAC. So you will write given in the bracket. ठीक है, ये दोनों एंगल्स गिवन है. अब मैं क्या कर रही हूँ, ऐड करती हूँ यहाँ पर, एडिंग एंगल DAC बोथ साइड्स. देखिए स्टूडेंट्स, यूक्लिड ज्योमेट्री जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5, वो आपने पढ़ा नहीं है, पर उसमें कुछ एक्सियम्स और कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं. तो उसका एक एक्सियम यहाँ पर यूज हुआ है. वो क्या होता है, यहीं पे सीख लो आप, कि अगर मैथ्स में कोई भी दो चीज इक्वल दी है, वो दो चीजें एंगल भी हो सकती है, साइड भी हो सकती है, तो हम उन दोनों जो इक्वल दिया हुआ है उसमें कुछ भी चीज ऐड कर सकते हैं एक जैसे. ठीक है, कैसे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है एडिंग एंगल DAC बोथ साइड्स. इसका मीनिंग ये है कि ये LHS पार्ट में भी मैं DAC ऐड करूंगी और RHS पार्ट में भी DAC ऐड करूंगी. ठीक है, देखिए उससे होगा कुछ नहीं, अगर वो कैंसिल करेंगे तो वापस हम इसी पोजीशन पे आ जाएंगे. पर ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि BAD और DAC मिलके ये बड़ा वाला ट्रायंगल बन जाए. ठीक है, उसका क्या यूज है वो आगे चल के आप समझोगे. तो यहाँ पर जो मैंने यूज किया कॉन्सेप्ट, वो आप ये मत सोचिएगा कि मैम ने कुछ भी ऐड कर दिया कहीं पर भी. मैथ्स में स्टूडेंट्स इक्वेशन हमेशा बैलेंस करके चलनी चाहिए. आप जो इस साइड ऐड कर रहे हो वही
उतनी ही चीज यहाँ पर भी ऐड करूंगी। ठीक है, अगर साइड ऐड कर रहे हो तो जो साइड यहाँ पर ऐड करी है उतनी ही लेंथ की साइड यहाँ पर भी ऐड करोगे, दोनों साइड LHS RHS में। अगर एंगल ऐड कर रहे हो तो यहाँ पर हमने DAC ऐड करा है, यहाँ पर भी ऐड करेंगे LHS में और RHS में ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऐड करने के बाद हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल BAD प्लस DAC और यहाँ पर EAC प्लस DAC। ठीक, दोनों तरफ मैंने DAC लिख दिया। ठीक है, जब इसे हम सॉल्व करेंगे इसकी जो भी वैल्यू होगी, सपोज करो 40-40 होगी, तो ये कैंसिल हो जाएगा जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इससे हमारी मैथमेटिकल इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, पर हमारा सॉल्यूशन में फर्क पड़ जाएगा। अब देखिए, मुझे फिगर देख के बताइए, सोचिए आप कि BAD और DAC कंबाइन ऐड होके क्या होगा, BAD और DAC, ये फुल एंगल बन जाएगा, BAD प्लस DAC, दिस एंगल प्लस दिस एंगल। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट्स लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू एंगल BAC। सिमिलरली एंगल EAC और DAC, EAC एंड DAC, तो ये वाला एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल DAE। ठीक है, DAE, इसका नेम लिख दिया हमने। ठीक है, तो नाउ हमारे पास आ गया BAC इक्वल टू DAE। ठीक, ये हमारे पास आ गया। अब हम आते हैं प्रूफ पर। इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल DE, इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने जा रही हूँ। अब कैसे मुझे पता चला कि मुझे कौन से ट्रायंगल लेने हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स देखिए, आपको जो प्रूफ करना है ना, उसमें लिखा हुआ है BC और DE को इक्वल प्रूफ करना है, BC एंड DE। और BC और DE किस ट्रायंगल में इंक्लूड होंगे उसको देखते हुए मैंने ये दो ट्रायंगल्स ले लिए। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में मैं क्राइटेरिया यूज करूंगी, उससे पहले ये चेक करूंगी कि इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या क्या साइड या क्या क्या एंगल्स इक्वल है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए, आप गिवन कंडीशन पे आ जाते हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स में AB इक्वल टू AD, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। देखिए, AB इक्वल टू AD, ये गिवन है। नाउ द सेकेंड थिंग इज एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAE। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये हमने अभी प्रूव करा, प्रूव्ड अबव। या इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो या लिख दो बाय इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, द थर्ड थिंग इज AC इज इक्वल टू AE, दिस AC इज इक्वल टू AE। ठीक है, ये भी गिवन था हमें क्वेश्चन में। तो अब देखिए कौन सा क्राइटेरिया हो गया, पहली साइड आ गई, फिर इंक्लूडेड एंगल, फिर साइड, तो SAS। तो नाउ विल राइट दैट बाय SAS congruency we can say that triangle BAC is congruent to triangle DAE। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय यूजिंग SAS congruency। अब स्टूडेंट्स ये कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो मैंने लास्ट क्लास में आपको एक वर्ड बताया था CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका मीनिंग ये होता है कि अगर दो ट्रायंगल्स को हम किसी भी क्राइटेरिया का यूज करते हुए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं, तो उसकी बची हुई करस्पॉन्डिंग साइड्स और बचे हुए एंगल्स भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम CPCT से वो चीज देख लेते हैं जो हमें प्रूफ करनी है। अब देखिए, ये BC और ये DE, ये इक्वल हो जाएगा, दिस BC इज इक्वल टू DE, करस्पॉन्डिंग साइड्स है ये, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। हम रीजन लिखेंगे बाय CPCT। ठीक है, तो बाय CPCT दिस BC इज इक्वल टू DE। ओके, क्लियर नाउ स्टूडेंट्स? हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया है। देखिए, यहाँ से स्टार्ट करना है, ये जो एंगल इक्वल गिवन थे ना, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, फिर दोनों तरफ DAC ऐड करना है। ठीक है, ये कॉमन B बीच में आ रहा था, ये वाला एंगल दोनों तरफ ऐड कर दिए, उससे क्या हुआ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा इक्वल आ गया। ठीक है, इक्वल आ गया, तो जब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने जाएंगे तो ये एक पॉइंट हमारा यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, और बाकी दो चीज गिवन थी, ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, और ये एंगल्स इक्वल आ गए। तो SAS कॉन्ग्रुएंसी से हमने दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बता दिया, और CPCT से ये BC इक्वल टू DE हो गया। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पहले रीड करते हैं। AB is a line segment, this AB is a line segment, P is its mid point। ये जो P है ये इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि ये AP और PB इक्वल है। ठीक है,
एंड डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ ए बी, ये डी और ई पॉइंट्स है, सच दैट एंगल बी ए डी, दिस बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, एंड एंगल ई पी ए, दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल डी पी बी, दिस डी पी। ठीक, ये दो एंगल्स हमें इक्वल दिए हुए हैं और हमें दो चीजें शो करनी है, दिस वन और दिस वन। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है और ए डी इक्वल टू बी ई है। ठीक है, तो सबसे पहले फिगर में मेंशन कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें इक्वल दी हुई है। देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल गिवन है। ठीक है, और दूसरी चीज, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल गिवन है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रूफ। यहाँ गिवन स्टूडेंट्स आप खुद लिख लीजिएगा कि क्या गिवन है, क्या हमें प्रूफ करना है। टू प्रूफ में दोनों पॉइंट्स लिख लेना जो जो प्रूफ करना है। ठीक है, नाउ प्रूफ, मैं डायरेक्ट प्रूफ करा रही हूँ। यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर अगेन में जो गिवन दिया हुआ है, हमेशा स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि जो गिवन होता है ना, वहीं से क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें गिवन है एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी, दिस इज गिवन स्टूडेंट्स। सी, ई पी ए एंड डी पी बी, ये जो पिंक लाइन से बना हुआ है ना, ये इक्वल गिवन है, तो यहाँ पर मैं गिवन लिख देती हूँ। ठीक है, फिर सेम कॉन्सेप्ट जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज करा है, एडिंग एंगल डी पी ई बोथ साइड्स। अब यहाँ पर मैं डी पी ई को ऐड कर रही हूँ, क्योंकि देखो ये डी पी ई मिड में आ रहा है ना। ठीक है, ये स्टूडेंट्स जब ये ऐड करते हैं ना, ये उसी क्वेश्चन में करते हैं जब कोई भी एक पोर्शन कॉमन आ जाता है बीच में। पिछले वाले क्वेश्चन में भी वो डी ए सी वाला एंगल बीच में आ रहा था। ठीक है, विच इज इन बिटवीन द टू एंगल्स, तो हमने उसे दोनों में ऐड कर दिया। यहाँ पर भी देखिए, ये और ये इक्वल है और ये मिडिल वाला पोर्शन है ना, तो इसी मिडिल वाले पोर्शन को मैं ऐड कर रही हूँ, डी पी ई को दोनों तरफ ऐड कर रही हूँ। तो देखिए ऐड करके क्या मिलता है हमें, फिगर में देख के सोचिए कि डी ई पी ए और डी पी ई ऐड होके क्या मिलेगा हमें। देखिए यहाँ मैंने लिख दिया, तो देखिए ई पी ए एंड डी पी, दिस वन, तो ये कौन सा मिल गया, दिस वन, ये पूरा कंप्लीट ट्रायंगल। तो हम यहाँ लिख देते हैं इट इज इक्वल टू डी पी ए, सिमिलरली डी पी बी, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों मिलके ये पूरा मिल गया, तो इसे हम लिख सकते हैं ई पी बी। ठीक है, ये और ये ज्वाइन होके ई पी बी में। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आएगा ये कैसे आया। ये गिवन था, यहां से मैंने डीपी को ऐड करा। देखिए स्टूडेंट्स, गिवन में दो एंगल्स इक्वल, ये दोनों भी इक्वल गिवन थे, ये दोनों भी इक्वल गिवन थे, पर अगर मैं यहां से स्टार्ट करती तो यहाँ पर कुछ ऐड करने के लिए था ही नहीं, क्योंकि ये दोनों एंगल्स जो है वो बिल्कुल सेपरेट है। पर यहाँ पर ये दोनों में सिर्फ ये कॉमन आ रहा है, तो इसलिए हमेशा ये सिलेक्ट करेंगे जो कॉमन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ से स्टार्ट करा इनिशियली, फिर दोनों तरफ डीपी ए जो कॉमन एंगल था वो ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद ये बन गया स्टूडेंट्स डीपी ए, दिस वन, और ये बन गया ईपी। ठीक, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ इन ट्रायंगल डीपीए, सॉरी डीएपीए, उसे प्रूफ करना आपका इजी होगा, डीएपी एंड ट्रायंगल ईबीपी, डीएपी एंड ईपी। इसमें देखिए ये हमने ऑलरेडी इक्वल प्रूफ कर दिया है, डीपीए इक्वल टू ईपीबी। ठीक है, ये हमने बाय इक्वेशन फर्स्ट ये अभी प्रूफ करा। देखिए यहाँ पर डीपीए इक्वल टू ईपीबी। सेकेंड थिंग इज दिस एपी इज इक्वल टू पीबी। हाउ, यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है स्टूडेंट्स कि ये जो एपी है ना, ये जो पी है ये मिड पॉइंट है, दैट मीन्स दिस साइड शुड बी इक्वल टू दिस साइड। ये दोनों साइड इक्वल होंगी। ठीक है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, क्योंकि P मिड पॉइंट है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि AP इज इक्वल टू PB। यहाँ पे लिख दो P इज द मिड पॉइंट। P मिड पॉइंट हो गया। देखिए एक एंगल आ गया, एक साइड आ गई। अब एक और एंगल आ सकता है जो गिवन है, ये वाला, ये A वाला और B वाला। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल DAP इज इक्वल टू एंगल EBP।
कौन सा लिखा मैंने, DAP ये वाला और EBP, ठीक है, ये वाला, ये जो ब्लू कलर से मार्क है ये वाला, ये गिवन था। देखिए जो भी गिवन होगा उसका यूज कहीं ना कहीं होगा। इस क्वेश्चन में गिवन क्या था कि ये दोनों एंगल और ये P मिड पॉइंट है, तो P मिड पॉइंट का भी यहाँ पर यूज हो गया। ये जो इक्वल गिवन था यहाँ से हमने हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट करा है और ये बचा हुआ है उसे हमने यहाँ यूज कर लिया। ये गिवन था क्वेश्चन में। तो अब क्या हो गया स्टूडेंट्स, ASA पहला एंगल आ गया, फिर साइड आ गई, फिर एंगल आ गया। तो हम यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल DPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP, ठीक है। DPA और EBP इक्वल हो गए, ठीक है, और ये दोनों इक्वल हो गए ट्राइंगल। तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड से हमें प्रूफ क्या करना था, पहला तो यही प्रूफ करना था कि DPA इक्वल टू EBP। स्टूडेंट्स यहाँ पे DAP है, इसे AP लिख लीजिए। बात एक ही ट्राइंगल की हो रही है पर AP ही लिखिए क्योंकि प्रूफ यही करना है ना, तो उसी फॉर्मेट में लिखिए। DAP इक्वल टू EBP, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। यहाँ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। ये जो फर्स्ट पार्ट गिवन था ना क्वेश्चन में प्रूफ करने का। नाउ सेकेंड पार्ट, इफ ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP, हम ये बोल सकते हैं कि CPCT से दिस DA इज इक्वल टू EB, ठीक है। हमें पता है कि जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय CPCT, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये दोनों क्वेश्चन में एक ही चीज हमने करी है कि जो एंगल गिवन था वहां से उठाया है और जो कॉमन एंगल था उसे दोनों तरफ ऐड करा, तो एक एक एंगल हमारे इक्वल आ गए। दोनों क्वेश्चन में यही हुआ है। उसे इक्वेशन फर्स्ट दे दी, फिर जो ट्रायंगल हमें प्रूव करना था उस हिसाब से हमने दो ट्रायंगल लिया और उसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। बस यहाँ पर SAS यूज हुई थी, यहाँ पर ASA यूज हुई, ठीक है। क्राइटेरिया डिफरेंट है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक तो इसमें 4 पार्ट्स प्रूव करने हैं। इसके थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसके 4 पार्ट्स प्रूव करने वाले हैं। और क्या क्या गिवन है, इन राइट ट्रायंगल ABC, ABC एक राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल एट C, दैट मीन्स यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। M इज द मिड पॉइंट, दिस M इज द मिड पॉइंट, अगेन अ मिड पॉइंट इज गिवन। तो M मिड पॉइंट है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि DM और MC इक्वल है, ठीक है। और C is joined to M, ये जो C है ये ज्वाइन कर दिया M को एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट D सच दैट DM इक्वल टू MC। सी स्टूडेंट्स यहाँ पर M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये AB हाइपोटेनियस का M मिड पॉइंट है, दैट मीन्स दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। और C ये ज्वाइन कर दिया है और DM इक्वल टू MC, ये गिवन है। देखो ये दोनों साइड इक्वल है, ये गिवन है, और ये मिड पॉइंट है इसका, तो ये और ये भी इक्वल होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर। ओके, नाउ पॉइंट D इज ज्वाइन टू पॉइंट B, पॉइंट D और पॉइंट B को ज्वाइन कर दिया है। शो दैट, हमें शो करना है ये 4 थिंग्स वी हैव टू शो कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ 4 पार्ट्स हमें प्रूव करने हैं। तो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। ये क्वेश्चन है गिवन, आप लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट फर्स्ट सॉल्यूशन करा रही हूँ इसका। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट, देखिए फर्स्ट पार्ट में मैं यहाँ लिख देती हूँ क्या प्रूफ करना है। टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है, तो हम प्रूव कर लेते हैं। देखिए ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं ना, तो इन दोनों ट्रायंगल्स को ही हम ले लेते हैं। इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स कौन कौन से ट्रायंगल है, AMC और BMD। अब इसमें बताइए क्या क्या चीजें इक्वल है। देखिए क्वेश्चन में काफी चीजें गिवन थी कि ये जो M है ये मिड पॉइंट है AB का, दैट मीन्स MB ये साइड इसकी बराबर है, ठीक है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है और ये ऑलरेडी इक्वल गिवन है।
ये क्वेश्चन में ही गिवन है कि DM और MC इक्वल है, ठीक है। तो हम देखिए स्टूडेंट्स कहाँ से स्टार्ट करेंगे। AM इज इक्वल टू MB, AM इक्वल टू दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, यहां लिखेंगे हम M इज द मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है ऑफ AB, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो हमने यहां लिख दिया AM इक्वल टू MB। द सेकेंड थिंग इज एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल BMD, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ये हमने लाइंस और एंगल्स में पढ़ा है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मतलब दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये और ये एंगल इक्वल हो गया, यहाँ रीजन लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक। द थर्ड थिंग इज ये वाला साइड इक्वल गिवन है, तो दैट मीन्स विल राइट CM इज इक्वल टू DM, दिस इज गिवन। तो हो गई तीन चीजें, पहली साइड, फिर एंगल, फिर साइड, दैट मीन्स साइड एंगल साइड। तो बाय SAS congruency we can say that triangle AMC is congruent to triangle BMD, ठीक। ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, यही हमें प्रूव करना था। अब स्टूडेंट्स यहाँ से कुछ चीजें हम डिराइव कर लेते हैं CPCT से। देखो AMC BMD के कॉन्ग्रुएंट हम प्रूव कर चुके हैं, तो कैन वी राइट AC इज इक्वल टू BD, दिस AC इज इक्वल टू BD, ये CPCT से होगा बाय CPCT, एंड एंगल ACM इज इक्वल टू एंगल BDM अगेन बाय CPCT। अब यहाँ पे दो दो चीजें क्यों लिख ली मैंने CPCT से, क्योंकि आगे मुझे और तीन पार्ट्स प्रूफ करने हैं, उसके लिए मुझे इन चीजों की नीड होगी, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर दो चीजें लिख दी, दो एंगल, ये दोनों साइड और ये दोनों एंगल ACM, दिस ACM ये वाला और BDM ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल, ठीक है। नाउ मूविंग टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट पे हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स, वी हैव टू प्रूव दैट एंगल DBC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये राइट एंगल है, तो दैट मीन्स DBC को 90 डिग्री ऐसा प्रूव करना है ना हमें, कि ये वाला एंगल DBC ये भी 90 है, ये 90 तो गिवन है, ये 90 प्रूव करना है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ टू प्रूव DBC इक्वल टू 90 डिग्री। अब आ जाते हैं प्रूफ पर। देखो इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, यहां पर देखिए जो पिछला प्रूफ करा है ACM इक्वल टू BDM, यहीं से स्टार्ट करेंगे हम सेकेंड वाला सॉल्यूशन। ये स्टूडेंट्स ये जो 4 पार्ट्स है ना, ये ऐसे ही है, फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करना है, उसका जो कंक्लूजन आया उसी से सेकेंड पार्ट स्टार्ट होगा, सेकेंड पार्ट का जो कंक्लूजन आया उसी से थर्ड एंड देन फोर्थ, ठीक है। ACM इक्वल टू BDM ये हमने अभी प्रूफ करा, यहां लिख देती हूँ प्रूव्ड अबव, अभी प्रूफ करा ना कि ये ACM BDM के इक्वल है CPCT से, ठीक है। ये दोनों इक्वल है। अब मुझे फिगर में एक बार देख के बताइए कि दिस ACM और BDM, ACM कौन सा ट्रायंगल है, एंगल है, देखिए ACM मतलब ये वाला और BDM मतलब ये वाला, ठीक है। अब लाइंस एंड एंगल्स का कॉन्सेप्ट रिवाइज करिए कि जब दो लाइंस पैरेलल होती है और ऐसे क्रॉस होती है ट्रांसवर्सल, तो ये Z बन रहा है, देखो मैंने Z बताया था आपको। तो जब भी ये Z जैसा बनता है तो वो हमेशा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा रोटेट करके देखिएगा स्टूडेंट्स, आपको समझ में आएगा कि ये दोनों एंगल एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, दैट मीन्स कि ये लाइन जरूर पैरेलल है, तभी तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल आए। ये इक्वल आ गए ना हमारे, इक्वल आए मतलब एंगल इक्वल कब आते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जब ये दो लाइन पैरेलल होती है और ये ट्रांसवर्सल होती है। तो कैन वी से दैट कि दिस ACM इज इक्वल टू BDM, देयरफॉर दिस AC शुड बी पैरेलल टू DB, ठीक है। तो ये पैरेलल होनी ही चाहिए। तो हम यहां लिखेंगे हाउएवर एंगल ACM एंड एंगल BDM आर alternate interior angles, since alternate interior angles are equal, so it can be said that हम ये कह सकते हैं कि this DB should be parallel to AC, ये DB और AC पैरेलल ही है, ठीक है। और अगर पैरेलल है स्टूडेंट्स, देखिए अगर पैरेलल है तो एक चीज आप और समझिए कि अगर ये दो लाइंस पैरेलल है तो हमने ये पढ़ा हुआ है ना
कि ये दो लाइन अगर पैरेलल है तो बीसी भी तो एक ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल मतलब क्या होता है, जो जो दो लाइन को, दो पैरेलल लाइन को कट करती है। तो यहाँ पर ये दो पैरेलल लाइंस हैं, तो डीसी भी एक ट्रांसवर्सल है, बीए भी एक ट्रांसवर्सल है और बीसी भी एक ट्रांसवर्सल है। ये सब एक ट्रांसवर्सल ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम 180 डिग्री होगा बाय को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी मैंने आपको समझाई थी कि जब भी दो लाइन पैरेलल होती है और एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल आर इक्वल। तो ये दोनों पैरेलल लाइन हो गई, ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो सेम साइड्स के जो एंगल होते हैं ट्रांसवर्सल के, उनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो वी कैन राइट दैट if DB is parallel to AC, we can write that DBC plus ACB is equal to 180 डिग्री। ठीक है, इसका रीजन क्या दोगे, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये को इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो ACB की वैल्यू हमें पता है 90 डिग्री, ये गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, ये 90 आ गया तो हमारा DBC, तो DBC की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 90, तो एंगल DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारा सेकेंड पार्ट प्रूफ हो गया। ठीक, हमें प्रूफ करना था कि DBC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमने प्रूफ कर दिया। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें प्रूफ करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, टू प्रूव दैट दिस DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ACB। दिस DBC, यहाँ पर देखिए एक बार, DBC ये वाला ट्रायंगल की बात हो रही है, एक बार मार्क कर लो, कंफ्यूज मत हो। दिस DBC, ये वाला DBC और ACB, ये दोनों ट्रायंगल्स की बात हो रही है। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स, देखिए DB इक्वल टू AC, ये हम यहां पर लिख चुके हैं। देखो फर्स्ट पार्ट की CPCT में हम लिख चुके हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या क्या चीजें इक्वल आएगी, एक तो मुझे कॉमन दिख रहा है बेस। ठीक है, ये एक ही बेस पे बने ना दोनों ट्रायंगल, ये BC ही तो बेस है। अगर मैं DBC की बात करूं तो वो भी BC बेस पे बना हुआ है, ACB की बात करूं तो वो भी BC बेस पे बना हुआ है। तो ये तो कॉमन साइड हो गई, ये साइड इस साइड के इक्वल गिवन, हम मतलब हमने प्रूफ करा था फर्स्ट पार्ट पे। ठीक है, थर्ड थिंग क्या हो जाएगी, ये अभी प्रूफ करा सेकंड पार्ट में कि ये दोनों एंगल 90 डिग्री, ये 90 डिग्री था, ये 90 डिग्री प्रूफ करा था, तो हो गया। तो SAS हो गया साइड एंगल साइड, एक साइड इंक्लूडेड एंगल और तीसरी साइड। तो हम लिख देते हैं इसे प्रूफ। तो हम सबसे पहले ये ट्रायंगल्स ले लेते हैं, इन ट्रायंगल्स DBC, ये लिखना इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स, एंड कि आप कौन सा ट्रायंगल ले रहे हो। ये दोनों ट्रायंगल्स हमने कंसीडर करें, इसमें क्या क्या चीजें इक्वल है, DB इक्वल टू AC, ये हमने प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट, ऐसे लिख दो। फर्स्ट पार्ट के CPCT में हम ये प्रूव कर चुके हैं, तो बार बार प्रूव करने की जरूरत नहीं है। और एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB, इसका रीजन क्या दोगे, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है। और थर्ड थिंग BC इक्वल टू BC, एक ही बेस पे बने हुए हैं, तो ये कॉमन साइड है। ठीक, ये कॉमन साइड हो गई, तो साइड एंगल साइड बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ACB। ठीक, चलिए अब फोर्थ पार्ट बहुत छोटा सा है, हमें प्रूफ करना है। टू प्रूव दैट in fourth part we have to prove CM equal to half of AB, this we have to prove। तो कैसे प्रूफ करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए इसका प्रूफ बहुत इजी है। देखो DBC और ACB को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं, इसको इक्वेशन सेकंड दे दो बाय इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड से हम ये बोल सकते हैं कि DBC और ACB कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCT कैन वी राइट दैट DC इज इक्वल टू AB बाय CPCT, दोनों का हाइपोटेन्यूज इक्वल होंगे, दिस DC इक्वल टू AB, ये CPCT से इक्वल होगा। अब मुझे फिगर में देख के बताइए कि DC इक्वल टू AB ये गिवन है, तो क्या हम DC के प्लेस पे, इस DC के प्लेस पे 2 टाइम्स ऑफ MC लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि यहां पर स्टूडेंट्स ये इक्वल है ना दोनों,
ये m मिड पॉइंट है और ये साइड इस साइड के बराबर है, तो मैं इसको 2 टाइम्स कर दूंगी तो भी तो यही आएगा। इसकी जो भी लेंथ होगी उसमें 2 का मल्टीप्लाई करूंगी तो ये पूरा डीसी आ जाएगा। दैट मीन्स आई कैन राइट इन प्लेस ऑफ डीसी आई कैन राइट 2 टाइम्स ऑफ सीएम या एमसी। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करूंगी, डीसी के प्लेस पे लिख रही हूं 2 टाइम्स ऑफ सीएम इक्वल टू ए बी। यहां पर रीजन क्या दोगे, क्यों लिखा मैंने ऐसा, बिकॉज डीएम इक्वल टू एमसी, ये गिवन है क्वेश्चन में कि डीएम और एमसी की लेंथ इक्वल है, तो 2 टाइम्स ऑफ सीएम इक्वल टू ए बी लिख दिया। अब इस 2 को ये मल्टीप्लाई में तो यहां ले जाइए डिवाइड हो जाएगा, तो सीएम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, 2 मल्टीप्लाई में ना तो ये ए बी अपॉन 2 चले जाएगा। तो ये ही हमें प्रूव करना था। ठीक है, सीएम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो ये हमारे ये 8th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आप ध्यान से समझेंगे इसे। इसके 4 पार्ट्स थे, सारे पार्ट्स इजी थे। फर्स्ट से स्टार्ट करा, उसका जो कंक्लूजन आया वो सेकंड में यूज हुआ, सेकंड का थर्ड में, थर्ड का फोर्थ में। ठीक है, तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और सैटरडे को या जूम क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।